Lovely to meet It you, was buddy. so nice that we bumped into you while we were meeting at Ranjoy's place. जी. And the connect was like something very, very different because you're probably one of the first people who understood what I was trying to do with the 200 coffees. जी. So that was very, very beautiful. And I'm glad that we're I meeting think it's today. a lovely concept. It's a completely yeah. lovely concept. Though I promised you that I'll come and do this in person while I would be in Dehradun, but inshallah that will happen soon. Sure, I look forward to that. Yes. Right. So I want to understand your journey in terms of, because one of the things that I did was to watch a video of yours, जी. which was a TEDx video that you had done. जी. And in which you had mentioned about that Rolling Stones don't gather a lot of moss, right? And I could really relate to that because one of the things that has happened in my life is that I've been experimenting a lot and trying to do something which is always very unconventional. I don't stop myself from experimenting. And but I'm living a life of no regrets. What has been your experience when you talk about these Rolling Stones that they don't gather a lot of moss? So I think this TED that you're referring to is the one that we did at the Doon School, and this was called Why I'm Still 17. Right. I did call myself a Rolling Stone, but primarily as a metaphor. And at the end of it, I said, Rolling Stones do end up gathering a different kind of moss. The only difference is that we are seen as mavericks. We are people who might at the end of it have enjoyed life more. और मेरा उस समय बच्चों को बताने का मकसद ये था कि यार देखो, you have to go after what you love. You have to be able to enjoy what you do. और पैसे की अहमियत जिंदगी में उतनी ही है जितना कि वो आपको कंफर्टेबल करने के लिए ज़रूरी है. And I think we've all figured out that money after the basic comforts are met is quite futile, क्योंकि उसके बाद the incremental increase in happiness compared to the incremental increase of money doesn't really correlate. It's not a one-to-one correlation. तो बहुत ज़्यादा भी आ जाते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है यार, बेसिक्स are met. तो मेरा उसमें मकसद ये था. I've done about 17 different kinds of jobs and I've worked for at least 10 different kind of industries. The recent one is when I turned an entrepreneur about 10 years ago. और जब मैं HR की नौकरी छोड़ के मीडिया टाइप के काम में आया था तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. पर धीरे धीरे we started doing radio jingles and programming, we started doing films, we started doing consulting and leadership training. और मुझे रियलाइज हुआ कि फाइनली if you stick to what you really like, and you naturally have to develop the skill. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि साहब मुझे पान खाने का शौक तो है लेकिन मैं पनवाड़ी बन जाऊंगा. मतलब you have to finally say this is what I really do well and this is what I would go after. So the passion that you bring and the skills that you bring need to club together. I don't think it makes a huge difference to anyone. You can enjoy life. Right. So you while answering this question, you mentioned something which is very, very beautiful, that पैसा उतना ही चाहिए जितनी ज़रूरत है, उसके आगे की ज़रूरत नहीं है. I mean, then it is probably driven by greed. And I think during this lockdown period, many of us have realized this because हम basic essentials में जी रहे हैं, हम बाहर खाना खाने तक नहीं जाते हैं. And we are basically and nobody is trying to spend money on things which is beyond the essentials that we need right now. So do you think it is an eye-opener for a lot of people who did not believe in this earlier? I think we all knew it, but a lot of us have been told कि तेज भागोगे तो कामयाबी मिलेगी, कामयाबी का मतलब ये होता है, कामयाबी इस तरह नापी जाती है. तो whilst we know what we feel like, we had forgotten to pay attention to it for the longest time. Now that all of us have stopped, now that all of us have been forced to think, I think एक आईना सा दिख रहा है. मुझे लगता है this is a great leveler and a great time to introspect. और ultimately तो अंदर से सबको पता ही था यार. It's not like we didn't know. लेकिन it's a great time to rethink that. Right. And आपने बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में करी. I remember you mentioned that you started working
behind the ice cream counter. And when you joined hotel management, it was with a very different perspective that you had in mind. And by the time you graduated, your perspective on life and the jobs and related to the hotel industry kind of changed. What do you consider these as your failures, or do you consider these as your setbacks, or is just a part and parcel of the whole game? When I went to do college, I really didn't know what I was getting into. My father asked me to leave home, और देहरादून छोड़ने का सबसे आसान तरीका था कि दिल्ली चले जाओ. लेकिन दिल्ली में जाके क्या करोगे? तो पेपर में एक निकला हुआ था ऐड कि इस तरह का एक कॉलेज है. मैंने एक दो दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा भाई ये भर दे, और तूने थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग की तैयारी की है तो होटल मैनेजमेंट क्रैक करना बड़ा आसान था. जब वहाँ पहुँचे तब जाके समझ में आया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई बॉस. मतलब ना मैं बावर्ची बनने लायक, ना मुझे वेटर बनने का शौक, ना, और वहाँ पे हमें गर्लफ्रेंड मिल गई. अब होता क्या है कि जब आप 17-18 साल के होते हो तो आपकी ज़िंदगी के जो ब्लाइंडर्स होते हैं बड़े सिंपल होते हैं. तो मेरा ब्लाइंडर ये था कि यार 3 साल अच्छे कट जाएंगे, उसके बाद देखेंगे. तो जब वो 3 साल कट गए, जब लोगों को बाकियों को नौकरियां मिल गई और हमें नहीं मिली, मतलब मिली निरूलाज में मिली और आइसक्रीम पार्लर के पीछे वाली मिली, तो तब जाके रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार ये कुछ ठीक नहीं है यार, ये मतलब ये हुआ क्या हमारे साथ. सो आई एम नॉट टू श्योर, बिकॉज व्हेन यू आर यंगर आई थिंक यू आर इनविंसिबल. You believe that you can take on the world. Because my father and I didn't get along and I was living outside of his kind of umbrella for some time, तो कोई पूछने वाला भी नहीं था कि करना क्या है. क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था तो हमें लगता था हम कुछ भी कर सकते हैं. जब कुछ भी कर सकते हो तो फिर रूल्स अप्लाई नहीं होते. तो कोई ये नहीं कहता कि जो नौकरी की थी वो आपके कॉलेज के एजुकेशन के हिसाब से होनी चाहिए. तो आई थिंक व्हाट रियली वर्कड इन माई फेवर इज दैट बिकॉज आई वॉजंट फॉलोइंग रूल्स, the rules that I applied to myself just became the norm. So I sold shoes, I sold artificial teeth, I sold audio systems. I went and worked as a manager at a BPO, went on to do training and became a leader. Went to do my MBA at XLRI, came back, suddenly लोगों ने कहा भाई वहाँ से डिग्री है तो HR कर लो. तो वो करते when I look back, I couldn't have asked for a better exposure or life, क्योंकि ज़मीन के उठे हुए लोग हैं, अपने पायदान चलते चलते we reach the right kind of levels and the right kind of titles. But we never lost really I don't think हमें ज़मीन से कभी जुड़े हुए हमने नहीं पाया. तो I think that has been success for me. आप किसी से भी बात कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट किया तो पता है कि अच्छी दारू क्या होती है, अच्छा बैठना क्या होता है. उससे पहले तो यार we came from very humble background, तो हमें पता नहीं था कि वाइन की बोतल के ऊपर जो लिखा है उसका मतलब भी क्या है. So one could carry oneself. At the same time, क्योंकि हम मोहल्लों की पैदाइश से, तो we never really, at least I never went around saying कि नहीं साहब हम तो कहीं के नवाब हैं. So those two things have really worked for me, and I think that's success for me. Well, what is very interesting is you have a HR background. And then you got into media and you're now doing, and I'm quite convinced about it, it's quite visible also, that you're enjoying doing what you're doing right now. But HR के अंदर मेरे को याद है कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा था और मेरे HR डायरेक्टर ने मुझे बुलाया और they were trying to build up a core team around the CEO, trying to for the next stage of their business. तो उन्होंने एक चीज मेरे से पूछी थी and जिसका आंसर मुझे उस टाइम पे तो मैंने दे दिया था, but मुझे आज तक उसका करेक्ट आंसर नहीं पता, because I don't know, maybe it is each one to his own. But उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हरविंदर आप स्पेशलाइज करना चाहते हो किसी चीज में या आप जनरलिस्ट रहना चाहते हो? What do you think about it? What would you say? I would say we need both kinds of people. I do believe that it's an answer that one has to find for oneself. मैं पहले इस दोनों की डेफिनेशन अपने हिसाब से क्लियर कर दूं, जिससे कि जब जवाब दूं तो पता लगे कि क्या है. मेरे हिसाब से एक ऐसा शख्स जो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, वो बहुत सारी चीज़ें करने का स्पेशलिस्ट है. एक शख्स जो एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा करता है, वो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट है. सो यू डू वांट टू गो टू अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन हार्ट सर्जरी आफ्टर ही इज डन 200 ऑफ दोज, बिकॉज यू रियली बिलीव उसका हाथ साफ हो गया होगा. So that kind of specialization I really think the world requires. लेकिन मेरे को दुख तब होता है जब बहुत सारे लोग कोई चीज़ सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको ये नहीं पता कि मैं दूसरी चीज़ का रिस्क लूंगा तो मेरे साथ क्या होगा. एंड दैट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब जी मैंने 20 साल तक HR में काम किया और एक ही काम हर रोज किया, हर साल वही काम किया,
तो उनसे सवाल ये पूछना चाहिए कि साहब आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है या आपको 1 साल का एक्सपीरियंस 20 बार है. तो दैट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन इज नॉट रियली ग्रोथ ओरिएंटेड स्पेशलाइजेशन. दैट इज नॉट रियली लर्निंग बेस्ड स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइज करो तो यार एवरी डे यू वुड हैव लर्न समथिंग, यू वुड हैव बिकम बेटर, यू वुड हैव इवॉल्व्ड. उस तरह का स्पेशलाइजेशन आई थिंक इज ग्रेट. मेरे ज़ाती तौर पे व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ आई थिंक आई एम अ स्पेशलिस्ट ऑफ सर्वाइवल इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री. तो अगर आप मुझे कहो यार रात को तेरी दुकान जल गई है, कल सुबह तूने एक नई चीज़ की दुकान खोलनी है, तो मैं हफ्ते डेढ़ में वो भी सीख लूंगा और उसका भी नया धंधा कर लेंगे और देखा जाएगा. सो आई थिंक स्पेशलिटी को डिफाइन करना पड़ेगा. Okay, got it. You had, as far as I remember, and maybe you can correct me if I got it wrong, but you have failed relationships. जी. Or you had challenged relationships. No, right? Some failed, some challenged, And, some successful. Yeah. I want to understand what you think about relationships. So, I think अगर आपकी कोई पूंजी है जिंदगी में तो वो आपकी अच्छी रिलेशनशिप है. नॉट जस्ट रिलेशनशिप्स, अच्छी रिलेशनशिप्स. मेरी क्या मतलब, कोई भी ढंग का आदमी कायदन यही बोलना चाहिए, बोलते नहीं बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन फ्रॉम द लिमिटेड एक्सपीरियंस दैट आई हैड, आई रिलाइड ऑन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एज द प्लेस टू गो टू फॉर मी व्हेन एवर आई नीड. और नीड का मतलब ये नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब है या मेरे को पैसे की ज़रूरत है या वो है. फॉर एवरीथिंग दैट वी बीन एबल टू डू देयर हैज़ ऑलवेज बीन समबडी हु ट्रस्टेड यू, हु बैक्ड यू, हु पुट his or her trust in you at that time and said कि देखा जाएगा. And those relationships really work. एक अच्छी रिलेशनशिप मेरे हिसाब से वो होती है जिसमें कि there is a sense of partnership, जिनके साथ आप लंबी बात कर सकते हैं, जिनको आप खुल के बोल सकते हैं, जिनके साथ आप vulnerable हो सकते हैं. और ऐसी रिलेशनशिप ज़िंदगी में कल्टीवेट करनी चाहिए. वो दोस्त हो सकते हैं, वो अपने परिवार वाले हो सकते हैं, वो मोहल्ले का कोई हो सकता है, वो 200 कॉफ़ीज़ वाले दोस्त हो सकते हैं जो मिले तो पहली बार है, जिनके साथ बात करके लगता है यार बड़े ज़माने से बात कर रहे हैं. एंड हु नोज़ हाउ रिलेशनशिप्स वर्क. मुझे रिलेशनशिप्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि क्योंकि एक दोस्ताना व्यवहार लेके हमें बचपन से सिखाया गया था यार जहाँ भी जाओ सी द गुड इन अदर पीपल एंड यू विल फाइंड. तो हमने फिर हमारे दोस्त भी बहुत सारे हो गए. मतलब जिसके साथ स्कूल में किया था वो भी दोस्त है, कॉलेज वाले भी दोस्त हैं, नौकरियों वाले भी दोस्त हैं. नौकरियां इतनी सारी की हैं तो जहाँ जहाँ नौकरी की थी वहाँ के दोस्त हैं. टुडे व्हेन आई गो आउट, आई थिंक माय बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड हेंस ऑल्सो माय बिगेस्ट अर्निंग हैज बीन ऑल दीज पीपल दैट यू हैव लेफ्ट फ्रेंडली इफ नॉट रियली गुड फ्रेंड्स. और रिलेशनशिप्स इसलिए बहुत ज़रूरी है. सारी अच्छा बिजनेस दोस्ती पे बेस्ड होता है. जब हम नए नए देहरादून आए थे तो क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ज़िंदगी में एक जिंगल नहीं बनाया था, तो मैं कुछ दोस्तों के पास गया. मैंने कहा यार ये मैं करना चाहता हूँ, तुम एक मुझे मौका दे दो. एंड द ओनली रीज़न व्हाई आई वाज एबल टू काइंड ऑफ बी एबल टू डू दीज थिंग्स इज बिकॉज बहुत सारे लोग कहते थे यार ये बंदा जैसा भी है कुछ ना कुछ कर लेगा, तो एक चल करके दिखा. लेकिन अगर वो दोस्त नहीं होते तो कहाँ जाते. तो आई थिंक वी होल लॉट टू फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स. करेक्ट. बट क्या होता है कि जैसे आपने बताया कि यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग योर करियर, यू नो, स्कूल टाइम, कॉलेज, फिर कहीं पे वैसे मिल गए. लेकिन तो आप हर बंदा, मेरे को लगता है आज की डेट में एटलीस्ट जैसे हम दोनों सोशल लोग हैं, हमारे को हज़ारों लोग जानते हैं. जी. ठीक है ना. हम वी आर कनेक्टेड, वी आर सोशली कनेक्टेड विद अबाउट थाउजेंड्स ऑफ पीपल. जी. बट जब मैंने 200 कॉफ़ी शुरू किया था, क्योंकि मेरे को ये रियलाइज़ हुआ था कि जब मुझे जरूरत पड़ती है, मुझे कुछ चाहिए, जी. तो शायद वो बंदा मेरे साथ फेसबुक पे, लिंक्डइन में कनेक्टेड है, लेकिन मेरे को पता भी नहीं चलता. मेरे को उसका ज़हन में भी नहीं आता कि वो मेरे को ऑलरेडी जानता है या मैं उसको ऑलरेडी जानता हूँ. बिल्कुल ठीक है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे हैं बट हम उनसे कनेक्टेड नहीं रहते. Which is why I got into, you know, these conversations where I said I'm going to meet 200 people. आपको क्या लगता है कि do you need to narrow down your sphere of people that you really know, or is it, I mean, the whole plethora should be open? I think the biggest currency one has is time, or limited currency है. When I use the word friends loosely, I really mean friends that you have, like I have 5,000 on Facebook and
probably another few thousand who follow, and they're all friends. लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने एक छोटी सी नज़्म लिखी थी, सफ़ेद कमीज़ें, और वो इसीलिए I लिखी थी have that written here because I want to ask you about that. तो मेरा ओपिनियन तो उसके बारे में बड़ा साफ है. देखिए, in a vulnerable state, I don't think I will go to more than 3 or 4 people that I really cherish in my life, जो कि मुझे जज नहीं करते, जो कि जानते हैं कि यार ये इस किस्म का एनिमल है, और जो मुझे कैटेगराइज करके रोज़ सुबह याद नहीं दिलाते कि यार तू गलत है या सही है. तो वो लोग तो साहब स्पेशल हैं. लेकिन मेरा मानना ये भी है कि इज़्ज़तदार तरीके से ज़िंदगी निकालने के लिए इज़्ज़तदार रिलेशनशिप चाहिए आपको, अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने नेशन के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ. और वो दोस्ताना है, दोस्त तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दोस्ताना व्यवहार और अच्छे दोस्त. और नहीं, यू आर राइट, यू कांट हैव मोर देन 3 or 4 people, क्योंकि वक्त ही उतना है. उससे ज़्यादा अगर आप किसी को दे ही नहीं सकते तो वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी. एक अच्छा पियानो सीखने के लिए अगर 10,000 घंटे चाहिए, तो एक अच्छा दोस्त बनाने के लिए कम से कम 5,000 घंटे चाहिए. तो नहीं बन पाएगा. अच्छे लोग तो मिलेंगे. आपने एक नज़्म लिखी थी जिसके अंदर, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, इट वाज आपके फादर का मेंशन था कि कैसे आपने कई साल उनसे बात नहीं करी, और जब वापस आए बात करी तो आपका एज डिफरेंस भी था. मतलब जो आप छोड़ के गए थे तो डिफरेंट एज में थे, और जब वापस आए तो आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो गया था, और आपने रियलाइज किया कि जैसे वो सोचते थे पहले, वैसे ही अब आप सोचते हो. बिल्कुल ठीक है. इसके बारे में बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक एक्सपीरियंस एंड नॉट एवरीबडी फील्स इट or realizes the thing. So what do you have to say about this experience that you felt? So, well, I think I wrote that nazm at my vulnerable best. तो उसमें एक तो कन्फेशन है और दूसरा एक समस्या है. कन्फेशन ये है कि अगर मैं ये बोलूँ कि साहब मुझे अपने फादर की बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं आती, और अब मैं रियलाइजेशन उसके साथ क्लब करता हूँ कि मैं भी वैसा ही हूँ, तो इसका मतलब है मेरे अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे खुद पसंद नहीं है. दैट इज़ ऑन द साइड ऑफ हिपोक्रेसी, आई थिंक. तो मेरे लिए ये बड़ी मिक्स सी फीलिंग थी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने फादर को बचपन से ब्लेम करता आया, अभी भी करता हूँ. आई थिंक दैट हैज़ बिकम अ हैबिट. द रियलाइजेशन वॉज के व्हेन आई नोटिस्ड क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनको गुस्सा कैसे आता है, किस बात पे इरिटेट होते हैं, उनकी हिपोक्रेसी क्या है, कौन से नाटक के साथ वो जी रहे हैं, तो मैंने कहा यार यही सब चीज़ें मैं करता हूँ. तो नेचुरली DNA गेट्स पास्ड ऑन, आदतें गेट्स पास्ड ऑन. एंड फॉर मी आई थिंक इट वाज स्लैप ऑन माई फेस एट द राइट टाइम कि यार तू कंप्लेन तो करता है, लेकिन तुझे कंप्लेन करने का हक उतना नहीं है जितना तुझे लगता है तुझे होना चाहिए. So I think that is what I came away with. ऐसा नहीं है कि मैं अब वो चीज़ें नहीं करता, क्योंकि realization itself does not mean that we change. But realization से at least ये होता है कि तुम complain थोड़ी कम कर देते हो. अब complain करने के बाद hurt थोड़ी कम हो जाती है. तो पहले अगर मैं पिताजी से कुछ बात हुई और मैं कई दिनों तक उस बारे में सोचता रहा, तो अब मैं कुछ मिनटों में कह रहा हूँ ठीक है यार, तू भी तो ऐसे ही है, you know, those kind of thing. So that is really I think it was a nazm called बाप और बेटे, और उसकी आखिरी लाइनें थी कि आपने जो तब कहा था डैड आज सुनाई देता है, मुझे खुद में अपना बाप दिखाई देता है. तो मुझे अपने खुद में बाप तो दिखाई देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को बहुत पसंद करता हूँ. आज भी हम घर में भिड़ते हैं, आज भी वी लॉक हॉर्न्स, एंड आई थिंक लाइफ गोज ऑन, बट इट इज नाइस टू हैव दैट सेल्फ अवेयरनेस. अच्छा, मेरे 200 कॉफी जब मैंने शुरू किया था, द होल प्रेमाइस वाज दैट यू नो डिजिटलाइजेशन ने हमारे को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट कर दिया है. जी. And the irony is that today we are actually using technology to get connected because of the situation, obviously. Do you also believe that digital world ने लोगों को डिस्कनेक्ट कर दिया है, या you would think the other way around that इसके जरिए हम एटलीस्ट कई लोगों से जिनसे हम दूर हो गए थे उनसे रिकनेक्ट हो गए हैं? So what is your take on this? आई थिंक किसी ज़माने में जैसे कहते थे ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ कॉजिंग पोल्यूशन, तो लोगों से ये पूछा जाता था कि यार इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉजिंग पोल्यूशन और नॉट ट्रीटिंग द एफ्लुएंट कॉजिंग पोल्यूशन. तो डिजिटाइजेशन में
if time is your currency and if you stopped spending time with people, Correct. वो डिजिटाइजेशन से पहले भी रिश्ते खराब होने की वजह होती थी कि आप वक्त और इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे हैं, और आज भी वही है. सो इट इज़ आई थिंक एन ईजी थिंग टू ब्लेम. जो लोग रिश्तों में इन्वेस्ट करते हैं उनके रिश्ते बच जाते हैं. ये बड़ी सिंपल सा बाइनरी टाइप का फॉर्मूला है. डिजिटाइजेशन के मेरे को फ़ायदे ये लगते हैं कि इस बहाने मुझे वो लोग मिल गए हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिल गए हैं जो कि मुझे अचानक रियलाइज़ हो रहा है हमारा दायरा बढ़ गया है. हम आज वी आर एबल टू रीच आउट टू पीपल जो पहले हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था. So that way, I think I thank digitization. The fact that a lot of work that I do goes viral, I thank digitization for that. I do, however, believe कि हमारी आदतें ज़रूर ख़राब हो गई हैं. मतलब सामने कोई बैठा है और हम उसके बावजूद फ़ोन पे लगे हुए हैं, ये एक आदत है. ये फ़ोन ने आपको नहीं कहा. So we can't really blame digitization for the habits that we've cultivated. तो really ये है यार. मुझे तो digitization का साथ बिजनेस में बहुत फ़ायदा हुआ है. I would not be able to do what I'm doing today if there was no internet, and I would not be sitting in Dehradun and be able to connect with people. लेकिन आदतें ज़रूर ख़राब हुई. नहीं, बट रिलेशनशिप्स में, बिकॉज अब मेरे को ये लगता है कि हम फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे हम इंसान से उस लेवल पे डील नहीं कर पा रहे या हम उसको जान नहीं पा रहे, बिकॉज हम वी आर डीलिंग विद अ फसाड. सही कह रहे हैं. राइट. सही कह रहे हैं. जब हम लोगों से मिलते हैं, यू नो, अब जब मैं 200 कॉफीज में, आई थिंक आई मेट ऑलरेडी मेट ओवर 175 पीपल whom I really wanted to know, converse with. एक होता है कि जिनके साथ आप कनेक्ट करते हैं, तो जब हम बात करते हैं तो बहुत डीप सेंस ऑफ कनेक्ट निकल के आता है. एंड यू रियलाइज, एक तो कुछ बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पॉपुलर लोग हैं, उनके अंदर का इंसान दिखता है आपको. ठीक है ना. और कुछ लोग हैं जो हमेशा खुद हंसते हुए खुश दिखाई देते थे, उनके अंदर के रोने की आवाज सुनाई देती है. बिल्कुल ठीक है. और दूसरी चीज ये है कि कुछ, मतलब मेरे को जो जब मैंने शुरू किया था, द ट्रिगर वाज दैट बहुत सारे कजन्स थे, दोस्त थे जिनसे हम रोज खेलते थे. बिल्कुल. और अब हम उनको फेसबुक पे देखते हैं, उनको अपने बच्चे की फ़ोटो भी डालते हैं, अपने बच्चे के बर्थडे की फ़ोटो भी डालते हैं, अपनी बीवी के साथ हॉलीडे गए हैं तो उसकी फ़ोटो डालते हैं. तो हमें एक वी फील दैट वी नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, बट उनसे जब असली में मिलो तो दिखता है कि वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू व्हाट वी अज्यूम्ड वी न्यू अबाउट देम. बिल्कुल ठीक है. हैव यू फेल्ट द सेम? Yes, absolutely. मैं शायद पहले सवाल ठीक से नहीं समझ पाया था. मैंने आपसे कहा अगर करेंसी आपका टाइम है तो आप टाइम कितना लगा रहे हैं, आप किस तरह टाइम अप्लाई कर रहे हैं. देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर अ 1-to-1 man-to-man और person-to-person कॉन्वर्सेशन विद एनीवन. वो तो इररिप्लेसेबल है. इसीलिए तो जब आपने कहा था ना कि 200 कॉफीज में कर रहा हूँ, तो आई वांटेड टू जंप ऑन. मैंने कहा यार ये है बंदा जो जाके कोई कायदे का काम कर रहा है. जहाँ सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि भाई यू शुड मूव टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन, ये कह रहा है नहीं, लेट्स गेट पर्सनल अगेन. देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर दैट. सारे अच्छे रिश्ते बने ही इस बुनियाद पे हैं कि किसी ने आपके साथ दिल खोल के बात की है. मेरी एक और नज़म है, कोई ऐसा ढूंढो जिससे बात कर सको. तो द होल आइडिया ऑफ saying when does a relationship really work for me also is, यार can I have a long conversation with this person. लेकिन एक अच्छी conversation करने के लिए आपको पहले खुलापन चाहिए, फिर आपको ट्रस्ट चाहिए, फिर आपको इंटीमेसी चाहिए, और वो तभी आएगी साहब जब आप किसी को कायदे से जानते हैं. सो नो, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर पर्सनल टच. बिल्कुल ठीक कह रहा. तो you had a life which I can relate with, and I can relate with it now that I know you much better. And when we met, when you spoke about all the आपने बड़े खुल के बात करी थी, about various things that happened in your life, instances, you're walking out of the house, your marriage. जी. What are those learnings that you treasure now, which have emerged because of the journey that you've had? जो शायद अगर ये इंसिडेंसेस नहीं होते जिंदगी में तो शायद आपको कभी सीखने को मिलता ही नहीं.
आई थिंक 100% लोग जब उनसे पूछा जाता है कि साहब आपको ज़िंदगी दोबारा जीने को बोली जाए तो आप कैसी जियोगे, वो ये कहते हैं साहब जैसी जिए वैसे ही जिएंगे। तो लर्निंग्स तो सबकी ज़िंदगी से सबको हैं। मैं जब भी, स्पेशली जब मेरे साथ बहुत सारे यंग लोग काम करते हैं तो मैं उनको 2-3 चीज़ें बोलता हूँ साहब, मैं आपको भी बताता हूँ। सीखा तो क्या है, एवरीवन इज़ लर्निंग थ्रू इट, लेकिन पिछले निचोड़ अगर इसको हम पूछें तो 2-3 है। पहला, जो पसंद है उसको संजो लो, जो नहीं पसंद है ना उससे भाग लो। डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि बड़ा लिमिटेड टाइम है। हमारे साथ के 2-4 लड़के निकल गए, वीव सीन यंग पीपल गो। तो आई थिंक दैट इज you have to go. So and the limited time you have, who do you want to spend it with and what do you want to spend it on is critical to understand very, very quickly in life. People spend entire lives doing things that they don't like or they don't completely enjoy, and I wonder कि what are you really after? मतलब ज़िंदगी में अल्टीमेटली अगर खुशी सबसे बड़ा पैमाना है और वही तुम्हें नहीं मिल पा रही तो तुम हो किस चक्कर में? And then if you are going to compensate it with everything else, that between people is now going to be the new scale of happiness, it's really unauthentic. पहला तो ये, और दूसरा ये है कि the entire need for especially societies like us, जहाँ पे के shame based society जिसे हम बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो बहुत ही यार अजीब सी सिचुएशन है हमारी कंट्री का इस पूरे रीजन में। if you are in relationships because you are afraid कि लोग क्या कहेंगे, if you are doing work कि लोग क्या कहेंगे, if you are thinking in certain ways कि लोग क्या कहेंगे, then you're not really juicing life, then you're really living on the edge and you haven't taken a deep dive into the possibilities that life has. और लाइफ की पॉसिबिलिटीज रिलेशनशिप्स में है, काम में है, खुद से रिलेशनशिप में है, सच्चाई में है, किसी के लिए क्या करना है, किसी के लिए नहीं करना है। आई थिंक इफ यू कैन लीड अ लाइफ ऑफ as much authenticity as possible in your situation, हिंदुस्तान में जैसे आजकल आप हर चीज़ तो नहीं बोल सकते, गोलियां पड़ जाएंगी, लेकिन अगर आप फिर भी ऑथेंटिक तरीके से रह सकें तो you could lead a happy life, and that's what really worked for me. Before we leave, Vinay, is there something that you'd like to say about 200 Coffees? Of course. तो पहले तो to be able to try and swim upstream against where the stream is going is a commendable job, Paji. So I must tell you कि 2 किस्म के लोग ऐसी हरकतें करते हैं। एक जिनको ये समझ में आ गया होता है कि यार मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, और दूसरा पागल होते हैं। तो पार्डन माय सेइंग, लेकिन पागलपन तो है आप में, और मैं आई विश ये पागलपन और लोगों में हो, ये पागलपन और फैले, ये पागलपन स्ट्रक्चर्ड तरीके से लोगों को समझ में आए। And I wish that 200 Coffees doesn't really stay your 200 Coffees. I think it's a movement waiting to happen. और I understand कि हर बार हम आपके ड्राइंग रूम में आके नहीं मिल सकते, लेकिन ये जो डिस्कशन है, this slower version of having a conversation where 2 people who trust each other open up and say यार देखो मेरे साथ ये हुआ था, इसको डॉक्यूमेंट करते हैं यार, और अपने बच्चों के लिए, किसी और के लिए, कोई और सीखने लायक हो तो उसके लिए छोड़ जाते हैं। क्योंकि द प्रॉब्लम विद द ह्यूमन रेस इज के हम सबको सब कुछ दोबारा सीखना पड़ता है। वी डोंट पास इवॉल्व्ड थिंकिंग फ्रॉम आवर डीएनए, या होगा भी तो मुझे नहीं पता, मिलियंस ऑफ ईयर्स में होगा। तो अगर हम ये सब बच्चों को समझाना शुरू कर दें कि यार देखो दोस्तों से बात ज़रूरी है, खाली उनके साथ वीडियो गेम खेलना ज़रूरी नहीं है। अगर हम मियाँ बीवी को सिखाना शुरू कर दें कि कम्युनिकेशन ज़रूरी है, अगर हम ऑफिसों में बॉस को, सबॉर्डिनेट को सिखाना शुरू कर दें कि बॉस लास्ट टाइम बैठ के दिल की बात कब की थी, वो वक्त कब निकाला था, आप मार्च के मार्च मिलते हो अप्रेजल पे, फिर आप बताते हो मैं तेरे को अच्छे से जानता हूँ, वो कागज़ बताएगा कि तू मुझे अच्छे से जानता है नहीं जानता, तेरे को पता है मेरे घर पे क्या हो रहा है, तेरे को पता है मेरा बच्चा किस क्लास में, तेरे को पता है कि मेरी भाई की हड्डी टूटी थी, मैं we've just stopped being kind and considerate, and we're not listening. Or I think at a human level, if these connections start to work, I think 200 Coffees will become 2 million Coffees, and hundreds of people should be talking to each other on a regular basis, and I really wish you luck. And I think if we can start to tell people the amount of wealth that you are creating, I am really envious कि तुम 175 यूनिक लोगों को मिले हो
जिनकी की जिंदगी का निचोड़ आपने अंदर डाली, तो आप तो 175 लोग हो गए ना भाई साहब। तो वो यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू समथिंग एल्स, एंड आई थिंक डिजिटाइजिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिजिटाइजेशन के हमने नुकसान तो देखे हैं, लेकिन आज मैं और आप स्क्रीन पे बात कर रहे हैं, लेकिन दिस इज एज गुड एज यू नो, बिकॉज वी इन्वेस्टिंग टाइम, हम खुलेपन से बात कर रहे हैं. If we can start putting these conversations together with this Pagal Sardar on one side and somebody else on the other side, I'm sure both these screens will get replaced and people will start having these conversations. People should put that together. I really wish you well, and I think it's a very, very powerful idea. जिसका I think time आ गया. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Pai.